आदरणीय मुकुल जी से निवेदन है कि वे मार्गदर्शन शुरू करें। धन्यवाद विश्वजीत जी, हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य सच्चिदानंद जोशी जी, अन्य पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष, संयुक्त महामंत्री आदि जो भी बैठक में उपस्थित है, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के महानिदेशक डॉक्टर राजेश बिनीवाले जी, डॉक्टर चोपड़े सर, आशीष जी और विश्वजीत जी, और लगभग 38 प्रांतों से मैं गिन पा रहा था, हो सकता है बाद में फाइनल टैली में और एक दो प्रांत जुड़ जाए, उपस्थित अनुसंधान प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि अथवा जिन प्रांतों में अभी अनुसंधान प्रकोष्ठ के लिए कोई हम तय नहीं कर पाए उस प्रांत के प्रांत अधिकारी। ये पहले ही हमारी राष्ट्रीय स्तर की बैठक यहाँ पर माया नगरी स्टेशन में हो रही है, and that's why we have to be very focused in our work, in our responsibility. Hence, today in this first meeting, I will just try to elaborate the points which will clarify our work of research cell, Anusandhan Prakoshth. In all, we have 7 Gatividhis in Bharatiya Shikshan Mandal. These 7 are the impactful activities that Bharatiya Shikshan Mandal conducts. Bharatiya Shikshan Mandal is an organization, संगठन है, पारिवारिक संगठन है. We bring people together, we network them together, but with what purpose? The purpose is very clear. We want to create a completely Bharatiya education system which will once again make Bharat Mata Jagat Guru. That is a very clear-cut task cut out for all of us. That is the goal, direct, tangible goal in front of us. We have to become a knowledge society and the leader of the world in knowledge generation, knowledge dissemination, which we had been for thousands and thousands of years and lost just a couple of centuries. 200 वर्षों का ये जो बीच का कालखंड है उसको छोड़ दिया जाए तो हम सारे विश्व में विश्वगुरु के रूप में सतत रहे हैं. And to regain that, Bharatiya Shikshan Mandal is very much committed. ये हमारा संकल्प है, सामूहिक संकल्प है कि हम इसको करेंगे, स्वप्न नहीं है. This is not our dream, this is our resolve, this is our mission, and we are all dedicated for that. And to achieve that, we have these 7 impactful activities, जिनको हम गतिविधि कहते हैं. We call them गतिविधि. गतिविधि means activities. Out of them, 3 are project activities, प्रकल्प, महिला प्रकल्प, गुरुकुल प्रकल्प और शालेय प्रकल्प, institutional project, women's project and gurukul project. This project is task oriented, objective oriented work. Then there are 2 specific activities. One is Yuva Ayam, that is youth dimension, and other is publication division, Prakashan Vibhag. They are specific activities. So these 5 are very specific activities, target oriented, task oriented. A direct task is there. Institutional project, Shalaya Prakalpa has a task to as many schools and colleges can become part of Bharatiya Shikshan Mandal movement and change the atmosphere there, ambience there, enhance the educational quality there. सीधे सीधे सामने लक्ष्य है शालेय प्रकल्प के सामने. गुरुकुल प्रकल्प के सामने सीधे सीधे लक्ष्य है 10,000 से ज्यादा गुरुकुल जो देश में चल रहे हैं, 10,000 more or more गुरुकुला, to bring them on one forum, उनको संगठित करना और नए गुरुकुलों को शुरू करना ताकि गुरुकुल मुख्य धारा की शिक्षा बने. डायरेक्ट टास्क है उनके पास. ये 5 हो गए, 3 प्रकल्प, 2 विशेष आयाम और विभाग. So these are the 5 activities, but 2 are named as Prakosht. They are called as cell. One is academic cell and other is research cell.
They are not vibhag, they are not division, they are neither projects. And why they are named as cells? Because that is a basic work of Bharatiya Shikshan. शिक्षण मंडल का मूलभूत कार्य ये दोनों सेल्स करती है. That's why they are called as cell. Cell means you are in charge of that cell. Mean in Bharatiya Shikshan Mandal's whole design, you have been given this specific responsibility to motivate all of Bharatiya Shikshan Mandal to do research. सेल का अर्थ ये नहीं है कि आप अलग से केवल अपना काम करेंगे. प्रोजेक्ट ऐसा कर सकता है कि अपना अलग से काम करें. सेल का काम होता है सारे शरीर को शक्ति देना, प्रेरणा देना. तो एकेडमिक सेल which will work for the creation of curriculum, creation of pedagogy, Bharat Kendrit curriculum, Bharat centric curriculum and all that, that work is of cut out for academic sale. But even that work cannot be done without the basic research. शिक्षण मंडल का और कोई भी काम बिना अनुसंधान के नहीं हो सकता. Whatever we want to create awareness in the society, we want to create a policy, we want to draft a pedagogy, it has all to be based on the foundation of research. So research cell is the basic work of भारतीय शिक्षण मंडल. इसलिए आपका काम है पूरे भारतीय शिक्षण मंडल को अनुसंधान केंद्रित कार्य के लिए प्रेरित करना. The responsibility of research cell is very important. It's a basic responsibility of making every work of Bharatiya Shikshan Mandal research oriented. हम 6 उत्सव मनाते हैं. मातृभाषा दिवस हमारा एक उत्सव है, भारत माता पूजन एक हमारा उत्सव है, व्यास पूजा हमारा एक उत्सव है, स्थापना दिवस हमारा एक उत्सव है, हिंदू नववर्ष हमारा एक उत्सव है. Now, research cell has a responsibility that all these celebrations are based on some basic research foundation. When we talk of Hindu Navavarsha on Varsha Pratipata or Ugadi, that celebration is not just celebration. केवल उत्सव के लिए उत्सव नहीं मनाना है, उसके पीछे जो कालगणना का रहस्य है, the whole beautiful science of this Kalaganana, which has developed in this country for thousands of years, and a lot of research has to be done, how it is more scientific than the Gregorian calendar and all that. And even if not comparing with it, how it is a more scientific way of looking at time in a spherical way, not just in a linear way. Now that research background for the Utsava, for the celebrations, will be given by research cell. So research cell is the basis foundation of all the activities that we take. Publication will be publishing books, but if the books are not peer reviewed, are not research based, are over claiming something, it always becomes counterproductive. रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख है, इस आधार पर यदि हम वैमानिक शास्त्र पर पुस्तक भारतीय शिक्षण मंडल यदि प्रकाशित करता है तो it won't work. If we want to produce a book on the aeronautical technology or aeroplane technology in our ancient literature, it has to be researched thoroughly. यंत्र सर्वस्व का पाराशर का रिसर्च करके और उस रिसर्च के आधार पर how the gyrometer worked on the basis of mercury propelled engine and all that. Now it has to be scientifically researched and then only validated, and then only it should be published. So even the publication division should have the research base. That's why it is called as cell. Academic cell is called as cell because it gives base to all the activities. Bharatiya Shikshan Mandal's activities, Sthapana Divas, even the Sthapana Divas has to be an academic activity. Bharatiya Shikshan Mandal's every activity, every program that it conducts should be academic activity based on research. That's why research is a cell, academic activity is a cell. All others are projects or division. So that's why it has to be very clear. Many of us have common responsibility of RFRF and Anusandhan Prakoshta. Research for Resurgence Foundation is an institutionalized project of Bharatiya Shikshan Mandal. It may become bigger than Bharatiya Shikshan Mandal in the form of outlay and the money invested and things they do and impact and all that.
but nevertheless it is a project of भारतीय शिक्षण मंडल. बेटा बाप से कितना भी बड़ा हो जाए, बाप तो बाप रहेगा. इसलिए the research cell of भारतीय शिक्षण मंडल has a bigger responsibility than just supporting RFRF. Supporting RFRF activity in our pranta is one of the responsibilities of research cell. It is not end all of research cell. So research cell को करना क्या है? अनुसंधान प्रकोष्ठ को क्या करना है? अनुसंधान प्रकोष्ठ को अनुसंधान करने वाले लोगों को संगठित करना है. Our main work is organization, networking, सूत्रबंधन. हमको अपने प्रांत में जेन्युइन जो रिसर्च में लगे हुए लोग हैं, भारत केंद्रित रिसर्च में लगे हुए लोग हैं, राइट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ह्यूमैनिटीज टू लैंग्वेजेस टू दी फ्रूगल इनोवेशंस, जो समाज में जिसको जुगाड़ कहते हैं, वहां तक जितना कुछ भी अपने प्रांत में हो रहा है, उन सबको नेटवर्क करना रिसर्च सेल का काम है. अब इनमें से कुछ लोग RFRF के काम के हो सकते हैं, कुछ लोग RFRF में काम के नहीं हो सकते, लेकिन वो हमसे जुड़े हुए होने चाहिए. उनके दृष्टि परिवर्तन का काम हमको करना. We have to make a paradigm shift in the research thinking of such researchers. So research cell's primary work is networking the researchers in our pranta. That is the basic work. उसमें से कुछ लोग RFRF में एक्टिव हो सकते हैं, सारे लोग नहीं होंगे, सारे लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होगा. वो कहेंगे मैं मेरे डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, वही बहुत है, मैं RFRF में. कोई बात नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज के साथ MOU होगा भी नहीं, मे नॉट बी पॉसिबल. RFRF का MOU कुछ यूनिवर्सिटी से हो सकता है अपने प्रांत में से, बट रिसर्च सेल हैज टू वर्क इन एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कॉलेज, एंड इवन बियॉन्ड दैट इन द इंडस्ट्री, in the research institutes, and even beyond that, even if some farmer is doing some research, even if some mechanic, not very much learned mechanic, but he has done some innovation, research cell will go to him, will give him a confidence that we are with you. So this is what research cell of Bharatiya Shikshan Mandal has to do. The work is bringing together, giving a forum to good researchers. They may not become कार्यकर्ता, they may not become member, 100 रुपए भर करके सदस्य भी नहीं बने, कोई बात नहीं, बट हमारा उनसे संपर्क होना चाहिए, हमारा उनके साथ में संबंध होना चाहिए, हमारा उनके साथ में कनेक्ट होना चाहिए. We have to connect with them. They should feel here is some forum where I can go and freely talk. मेरे सुनते हैं, मेरे नए आइडियाज को रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि the whole structure of our academic institution is so rigid sometimes that many of good ideas are rejected without listening. Our research cell should be able to give a forum to such people also. ये research cell का एक महत्वपूर्ण काम है. हमारे 3 काम भारतीय शिक्षण मंडल में ऐसे जो पैरेलल चल सकते हैं, जैसे विश्वविद्यालय इकाई का काम है, यूनिवर्सिटी यूनिट का काम है. यूनिवर्सिटी यूनिट भी यूनिवर्सिटी में होगा, RFRF का MOU भी हो सकता है सेम यूनिवर्सिटी के साथ में, जैसे अभी मराठवाड़ा अपना देवगिरी का जो बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, वहां पर हमारा यूनिवर्सिटी यूनिट भी है, हमारा MOU भी है, और हमारी रिसर्च सेल को भी काम करना है. तो these 3 will work distinctly with cooperation with each other, but everybody's work is cut out. और उसमें सबसे जो विस्तृत काम है, वो सबसे विस्तृत काम हमारा रिसर्च सेल का है. रिसर्च सेल विल, जो विश्वविद्यालय इकाई है, that organizational unit in the university is an organizational unit. जो सदस्य बनेंगे, 100 रुपए भरेंगे या 1000 रुपए भरेंगे, वो उसके सदस्य होंगे. रिसर्च सेल कैन गो बियॉन्ड दैट. RFRF की MOU की एक्टिविटीज उस MOU में जो हमने लिखा है उससे सीमित रहेगी. Research cell is not bound by neither by the membership of Vishwavidyalaya Ikai nor by the scope of MOU of RFRF. Research cell can go beyond that. वो एक फोरम बन सकता है सारे रिसर्चर्स का, नॉट जस्ट रिसर्चर्स, वुड बी रिसर्चर्स, फ्यूचर रिसर्चर्स, भावी शोधकर्ताओं को भी ढूंढना है हमको. इसलिए मेंटरिंग द स्कूल स्टूडेंट्स, उसके लिए एक मेंटरिंग का स्कीम डेवलप करना, वो काम रिसर्च सेल कर सकता है. इसलिए रिसर्च सेल का काम ये
काफी विस्तृत ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है. So we have to be on the lookout of. So your responsibility as a coordinator of research cell, अनुसंधान प्रकोष्ठ के प्रमुख के नाते आपका कार्य संगठनात्मक अधिक है. एक्चुअल रिसर्च आप करते हैं इसीलिए आपको जोड़ा गया है. आपके मन में रिसर्च का दृष्टिकोण है, आप खुद रिसर्चर है, इसके लिए ही आपको रिसर्च एक्टिविटी का दायित्व दिया गया है. किंतु उस दायित्व के अंतर्गत जो कार्य रिसर्च सेल में आपको करना है, दैट इज मोर ऑर्गेनाइजेशनल देन रिसर्च वर्क. इसलिए ज्यादा रिसर्चर्स को जोड़ने का काम आपको करना है, ज्यादा लोगों से संपर्क करने का काम आपको करना है. जो खुद रिसर्च नहीं कर रहा होगा वो उनसे ढंग से जोड़ नहीं पाएगा. he or she may not command respect from such people. इसलिए आपके जैसे प्रतिष्ठावान समाज में जिनके रिसर्च को मान्यता है, ऐसे व्यक्ति अनुसंधान प्रकोष्ठ के प्रमुख है. इसलिए इसेंशियल रीडिंग में मार्गदर्शिका में पुस्तक लिखी है शोधकर्ता कार्यकर्ता. वो उस पुस्तक का लेखक मैं हूं, इसलिए थोड़ा आत्मश्लाघा लग सकती है, लेकिन ये आवश्यक है कि आप सब शोधकर्ता तो है ही, लेकिन रिसर्च सेल कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको कार्यकर्ता बनना है. उस पुस्तक में 2 उद्देश्य है कि भारतीय शिक्षण मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता को शोधकर्ता हम बनाना चाहते हैं, और दूसरा उद्देश्य है शोधकर्ता कार्यकर्ता के रूप में काम करें. So in a research cell, you being a शोधकर्ता, you being a researcher, you have to become a better कार्यकर्ता, more efficient कार्यकर्ता, more productive कार्यकर्ता, ज्यादा लोगों को जोड़ने में सक्षम ऐसे कार्यकर्ता हमको बनना है. इसलिए कई बार हमको अपने स्वयं के प्रतिष्ठा को, ईगो को, अहंकार को थोड़ा सा बैक स्टेज पे रख करके सूत्रे मणिगणा एव जो भगवत गीता में कहती है, उस प्रकार से we have to be the thread in the garland, may not be the main pendant in the garland. We will have to become the thread, unseen, giving back support. Then only you will be a better research cell organizer. और ताकि हम लोगों को सामने लाए, लोगों को मंच दे, लोगों को प्रतिष्ठा दे, अच्छे रिसर्चर्स को एक ज्यादा लोगों के सामने लाने का काम करें. So that is in nutshell is the work of research cell. एक्टिविटी वाइज क्या करना है हमारी मार्गदर्शिका में बहुत स्पष्टता से दिया हुआ है. The first thing but we should do is start preparing a list of all good researchers in our pranta. Start listing them, and इसमें आप don't bother about the political or ideological leaning. अच्छे सारे रिसर्चर्स की लिस्ट बनाइए, स्टार कर दीजिए जिसके बारे में आपको लगता है कि इसकी शंका है थोड़ी सी, ये थोड़ा देश विरोधी दृष्टिकोण रखने वाला है, तो उसको स्टार करके रखिए, लेकिन उसकी जानकारी अपने पास होनी चाहिए. उसका गूगल स्कॉलर का सीवी अपने पास डाउनलोड करके रखिए. जो आपका मित्र बन सकता है उसको तो मांग लीजिए सीवी, लेकिन जो आपका मित्र नहीं भी बन सकता उसकी भी जानकारी रिसर्च सेल के पास होनी चाहिए. इनफैक्ट मेरे को तो कई बार लगता है जो विघातक लोग हैं, जो विघ्न संतोषी लोग हैं, such people who are basically very maybe good rigorous researcher, but their whole research is targeted towards breaking the country. जैसे रोमिला थापर रिसर्च में कम थोड़ी है, लेकिन उनका सारा दृष्टिकोण ही वो है. तो लेकिन we will have to keep a watch on them. So वो भी अपनी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए. अपनी लिस्ट में कोई अपनी लिस्ट को कोई जिसको कहना चाहिए सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं. वी डोंट नीड टू प्रिपेयर अ सैनिटाइज्ड लिस्ट. हमारी लिस्ट पूरी होनी चाहिए. उसमें से किसको अपन रिसर्च सर्कल में लेंगे, किसको मंडल में लाएंगे, किसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, वो आखिर हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा. और वैसे भी जो राष्ट्र विरोधी काम करने वाले लोग अपने पास आएंगे ही नहीं. अपने पास आने से वो ब्रांड हो जाएंगे तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है. इसलिए बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है. अपने पास ऐसे ही लोग आएंगे जो जेन्युइनली देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर जो सिंपैथेटिक है, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, बीइंग पॉलिटिकली न्यूट्रल. हमको ऐसे लोग चाहिए. ऐसे फेंस सीटर्स को अट्रैक्ट करने की एक्टिविटीज हमको करनी पड़ेगी. इसलिए ऐसे विषय लेकर के हमको रिसर्च के कुछ प्रोजेक्ट्स, रिसर्च के कुछ काम भी करने पड़ेंगे, जिसमें जो बहुत डायरेक्टली शाखा में आकर के नमस्ते सदावत्सल्य नहीं बोल सकते, वैसे लोग भी रिसर्च सेल के साथ जुड़े. नहीं तो भारतीय शिक्षण मंडल का उपयोग क्या है? यदि सबको शाखा में ले जाना है तो संघ तो काम कर ही रहा है.
वी हैव टू गो बियॉन्ड द पेरिफेरी, हमको उसके बाहर जाकर के काम करना है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शाखा से संघ से नहीं जुड़े होंगे लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़े, इसलिए और बड़ा सर्कल बनाते हुए और बड़ा वृत्त बनाते हुए वी हैव टू गो बियॉन्ड ऑल दीज आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल बाउंड्रीज and get the genuine researchers to come together and work for the good of the society, work for creating good knowledge base, a knowledge society. ऐसे लोग हमारे बहुत काम के हैं जो डायरेक्टली कभी आपके साथ में जिसको कहना चाहिए राजनीतिक रूप से या आइडियोलॉजिकली ही नहीं जुड़ेंगे, लेकिन दे आर वेरी गुड रिसर्चर्स, वेरी सॉलिड रिसर्चर्स। ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ भारतीय शिक्षण मंडल के रिसर्च सेल को जोड़ना चाहिए। जो बहुत ज्यादा भावना से और विचार से अपने साथ जुड़े हैं उनको तो जोड़ना ही है, उनको छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी सूची ऐसे ही लोगों की बन जाए कि जो इस प्रकार के हो। सारी सूची सभी लोगों की सूची होनी चाहिए। फिर उसके अंदर आप एबीसी कर लीजिए, फिर उसके अंदर आप श्रेणी बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला अपना टारगेट होना चाहिए रिसर्चर्स की सूची। दूसरा अपना टारगेट होना चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूशनलाइज रिसर्च कहाँ कहाँ पर होता है उसकी सूची। ये दो काम अपने को प्रांत के अधिकारियों को तुरंत प्रांत के रिसर्च सेल को करने चाहिए। तीसरा काम, इस काम को करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टोलियां खड़ी करनी पड़ेगी अपने को। विल हैव टू रीच द डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हमारा सारा रिसर्च का जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा महानगर सेंट्रिक हो गया है पूरे देश की। इसलिए उसको यदि डिसेंट्रलाइज करना है, जो कि इस कोविड-19 में बहुत बड़ा एक फ्लैग हुआ विषय कि एवरीथिंग नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, even the industrial activity has to be decentralized, even the academic activity has to be decentralized, even the educational activity has to be decentralized. In the same way research activity has to be decentralized. इसलिए छोटे छोटे शहरों में जाकर के हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए बी ग्रेड के, सी लेवल के जो आजकल एबीसी करते हैं अर्बनाइजेशन में, छोटे महानगर पालिका वाले या नगर पालिका वाले 1 लाख तक पॉपुलेशन वाले, वहां के शहरों में अपने रिसर्च सेल के कोऑर्डिनेटर वहां के रिसर्चर्स को जोड़ेंगे। और कई बार बहुत अच्छे रिसर्चर्स अपने को ऐसे स्थानों पर मिलते हैं और उनको बेचारों को फोरम नहीं मिलता, उनको बेचारों को एक्सपोजर नहीं मिलता, वो काम अपने को करना है। ये रिसर्च सेल के 3 काम मैंने बताए। पहले रिसर्चर्स की लिस्ट बनाना, रिसर्च इंस्टीट्यूट की लिस्ट बनाना, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कोऑर्डिनेटर्स को बनाना, और एक बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण लेकर के an all encompassing attitude, with all inclusive attitude, the research cell has to work. We will support the Vishwavidyalaya Ikai university unit also. We will support RFRF also, but we will go beyond both these and create a forum of researchers. Thank you.